Good evening, everyone. Thanks for being here. 1920 London, a film that we are extremely proud of. Absolutely fabulously made film by Tinu Suresh Desai, the debutant director of this film, who's all busy right now, not here with us, shooting his next film with Mr. Akshay Kumar in London. उनका आखिरी schedule चल रहा है. But खैर टीनू ने कमाल का काम किया, so I thought I have to bring about Tinu in the picture. Unfortunately, towards the end of the promotions, I think he might be able to join us. And of course, a great story by Mr. Vikram Bhatt. Reliance has done a wonderful job in giving us the kind of platform and the kind of budgets to make this film the way it's looking. We are here this afternoon now to launch the first song of our film Gumnaam, and for which we are very honored that Preetham has given us his time, and he's given us this wonderful song which works beautifully for this film of us. We are going to show it to you all a little later. I'm sure all of you all will like it, and in the meantime I would like to call Preetham here and ask him to say a few words about the song and the entire concept of it. Please, Preetham. Hello everybody. I always feel that kind of coming to this film industry and being here for nearly 12-13 years, and I always feel there's some blessings which works with me, because I every time I've been blessed with a lot of things. This new venture which I was in my mind for a very long time, as musicians in the West, they do a lot. They incubate new talents and artists. This is my new venture which I am launching this time. I'm kind of working with new talents to produce songs for the film industry, and this I still haven't named. We call it Jam, and that's the name. But मेरे साथ क्या होता है हमेशा name मैं बहुत I can't decide what is the name, but we are still working on the name. But we call it Jam. That is just about music, and I feel blessed. Why I'm talking about feeling blessed? Because this, to start with a platform like this, with Sharman being here, I have worked with him in Ferrari, and Mira, and working with Tinu. I have Tinu was an assistant with Abbas Mastan, and he's done such a brilliant film, and Reliance to get first. So I want to introduce Kaushik and Akash, who is a part of this company, who is the first talent we are introducing. Kaushik and Akash has done the music of Gumnaam and one more song. They're brilliant new talents. You will be seeing a lot more new talents from my platform, my inner company, and please bless them. And I think they have done a fabulous job. And thank you, Reliance, for giving this lovely platform to showcase. Our country has so many new talents who does not get through to the film industry, and they need a portal. And I think I'm happy to act as a portal to all the new talents to come in the film industry. So we need your blessings. Thanks a lot. Thank you, Preetham. It was our pleasure to be working with you. It's turned out incredible. I would also request Meera to please join the team, and before we give it a go. Good afternoon, everybody. 1920 London has been a great journey for all of us. I'm missing two people badly right now. One is Vikram and one is Tinu. They both have been the backbone of this film. Vikram has written a beautiful script, and Tinu, I think he's one of the most talented directors I've worked with. He's made a very good film. We all are very proud of it. We have worked really hard on it, and Sharman was a great co-star. Now Reliance has to take it forward and make sure that everybody sees the film. I'm really excited for this song. I have not heard it yet. Preetham sir, I've been your fan, a huge fan. So he's composed for my movie. I'm really excited for it. So yeah. So guys, the house is open for a Q&A. Please fire away. Sir, can you? Okay, I want to introduce Zubin Nautil and Antara, who are singing the song straight away. Q&A, any question and answer?
हम लोग मोबाइल लाइट इसलिए ऑन करते हैं ताकि पता लगा सके कि कहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या हुआ है. एटलीस्ट मैं वो करता हूँ. और रही बात डरने की, वो अभी स्टैंडर्ड रूल तो है नहीं. किसी को डर लगता हो, किसी को ना लगता हो, कोई मानता हो, कोई ना मानता हो. कहानी में ये जो किरदार है वो एक्सरसिस्ट का पार्ट कर रहा है, तो इट इज़ हिज जॉब. ही इज़ अ प्रोफेशनल. भूतों से जाहिर सी बात है डरता नहीं है, एक्सरसिस्ट है. उनको जो लोग पोजेस्ड हैं उनको वो मदद करता है, हेल्प करता है वो भूत उनके अंदर से बाहर निकालने में. लेकिन कहानी में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो ऑब्वियसली उस भूत और उस स्पिरिट से परेशान है, एंड दैट कम्स अक्रॉस. नहीं, इतना कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एक्चुअली, ऑनेस्टली. दो आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ एन एक्सरसिस्ट, इतना टेक्निकल उसका नॉलेज या नो हाउ होना इतना ज़रूरी नहीं था इस किरदार को निभाने के लिए. तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट विच वॉज माई गाइडिंग फोर्स, एंड ऑफ कोर्स टीनू द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, उसके जहन में जैसा था किरदार उस हिसाब से मैंने as close as possible I tried to portray that. But I personally have not had any experiences, but I do believe in spirits and I do believe in ghosts, because I believe in energies, and theatre mein we create energies aise hi while we are performing, or any creative person in their respective fields in that room wherever they are creating music. Let's say for instance Preetham is ek energy jo create ho jati hai which is not really in our control, and that comes I think it's quite magical, and that I can, because of that I can also relate to the presence of spirits and ghosts. So I'm not had an encounter, but I would assume because I'm at peace with that, of course I will be taken aback. I don't know how scared I'll be, so that till I experience I couldn't be able to tell you. Yeah, this is the part 3, 1920. The second part also did very well. It was very well accepted, and we hope that 1920 London, the third part of the series, the franchise, receives the kind of reception that the earlier two parts got. We're very confident and we are feeling very good about the film, and in my opinion, in terms of production only, not to disrespect the earlier makers, but this film is, in terms of production, we've taken it to the next level for sure. This is a much fancier, prettier looking film, and with a great story, and it's independent of the first two films, but I think just by its own individual strength, it's a film that's going to make an impact. Yeah. Gumnaam is for me like an all-time, and for all of us, I think, one of those immediately associated with a spirit, a ghost kind of a film, and it's a legendary song. It fits befitting for the film, the theme. The film is all about that. So isse better fit nahi mil sakta tha, and the kind of composition, the remix that these guys have done is really interesting. I find it very exciting. I mean, it's a kind of song which will grow over you, and it's going very well with the shots that we are in the film. That's how I feel. How challenging was to recreate that? These guys will answer. It was very challenging, of course, but we had an idea in our mind, and when we conveyed that to the director and the producer, and they approved of it to both of us, then we got the go ahead ki theek hai, you can do something like this, you can go ahead with this. So we tried, we permutated, we combinated, and then a match came up, which was, it has the modern era spookiness as well as it can connect to the old song Gumnaam. So I think that's how it fits. Of course there's a pressure, but the only thing is how you can handle the pressure. I hope we handled. I hope this song makes a mark. We are all praying for that. You guys also pray. So that's all I can say. जी बहुत ही बेहतरीन एक्चुअली. तो सबसे पहले तो लोकेशन दैट वी शॉट इट, इंग्लैंड में गए थे हम लोग, लंदन और लीड्स में इसकी शूटिंग हुई है. इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल द शूट. वी हैड ग्रेट वेदर, ग्रेट लोकेशंस. यू नो, इंग्लैंड कहीं पे भी यू सेट द कैमरा, it looks gorgeous. And apart from the fact that off the camera times was also wonderful because of the weather. Meera is great company to have, and Teenu is a wonderful director to work with. And we were working on something which was very interesting in terms of material. So we were very all excited, and बहुत मज़ा आया. ये फिल्म कब इतनी आसानी से बन गई in terms of the speed at which we shot, and it didn't feel heavy at all. And then of course we've had a schedule in Gujarat and also in Bombay. Or I think एक बार if you're working with a director who is very exciting, जो खुद on his toes रहता है, and someone who's constantly thinking and constantly challenging you as an actor,
तो वो पूरी जर्नी बहुत मज़ेदार हो जाती है और इसका क्रेडिट आई थिंक तीनों को ही जाना चाहिए. I feel horror, supernatural thriller especially, actually as it is it's a director's medium, but खास करके इस genre में writer और director के बगैर बात ही नहीं बन सकती है. And the sound thereafter, these are three elements which are extremely important. Actors get a little limited, but thankfully for us there was a bit of a challenge in this one because the story is also extremely meaty, and as actors we've got great parts to kind of show various emotions. But in by the genre, the way the genre is, I think the director, the writing, the sound, these are all extremely important. I mean, they come in the top three requirements of a good supernatural. Yeah. Gang of Ghosts, just by the title it was horror, but it was a comedy film. But 1920 मैंने Gang of Ghosts से पहले साइन करी थी और this was the script I could not say no to because I have a very good role. It's a very well written script. ऐसा नहीं है कि हॉरर मूवीज़ ही करना पसंद है, बट हॉरर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स. सो मैं सारी हॉरर मूवीज़ देखती हूँ, इंग्लिश या हिंदी. सो जब मुझे ये ऑफ़र हुई थी, देयर वाज नो पॉसिबिलिटी टू से नो. आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. नहीं, Ragini MMS is not the right comparison. This is Ragini MMS is a different kind of film. अच्छी फिल्म थी वो. 1920 से compare होगा. It's a part of the franchise. उसने ये franchise because इतनी successful रही है, अब जाहिर सी बात है, it already has a goodwill and it already has a loyal audience going for it. Definitely first two parts से उसकी comparisons होगी. मैंने already कह दिया मेरे opinion से, और आप भी देख लेंगे, compare करेगा कोई भी practical बंदा कहेगा. Production value में you can't beat this one, at least as of now. The story we all believe is a great one. We all think it's translated brilliantly on screen. अभी finally now you all have to watch it and decide for yourselves. मतलब आपको मुझसे क्यों डर लगा ऐसे? मेरी दाढ़ी की वजह से? इसलिए मैं दाढ़ी कटा के आया हूँ आज. वीडियो में मैं डरा नहीं रहा था यार, रो रहा था बेचारा, परेशान था. नहीं, ऑफसेट में बहुत डराता था लोगों को, ऑन सेट नहीं. हाँ बिल्कुल, घर पे भी सबको, अपनी बीवी बच्चों सबको डराता था मैं. स्पेशली मेरा पार्ट जो है वो लता जी का गाया हुआ पहले वाला पार्ट के साथ सेम है. जुबीन्स वन इज़ अ फ्रेश कॉम्पोजिशन. एक डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज देयर इज़ अ दैट आई डेयर टू सिंग दिस पोर्शन, और मैं बहुत ही घबराई हुई थी, पर आवर कंपोजर फ्रेंड्स दे मेड इट सो इजी. दे सेड दैट यू सिंग इट द वे यू वांट टू कंसीव दिस लाइंस. एंड लता जी के जो ओरिजिनल कंपोजिशन है, लता जी ने जो गाया है, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ये जो नयापन है इस गाने में उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मॉडर्न टच देने का कोशिश है. बट yes, Zubin's part is very more dominant. I guess I want him to say something on it. When I heard the song for the first time, मतलब मैं कौशिक और आकाश को, उनके साथ मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ पहले, साथ में हमने काफ़ी काम करा है. तो उन्होंने जब पहली बार मुझे गाना सुनाया, it was a very challenging song for me. It's a very, very challenging song because we were going all over. We sing low notes and then we sing high notes and we are all over the place, you know. So जब मैंने गाना पहली बार सुना, मुझको एक अच्छा गाना जब आप सुनते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये गाना है, इसमें मतलब इसमें बहुत मज़ा आएगा गाना गाने में. सो वो उस तरह से हमने एक टीम वर्क करके इसमें मेहनत करी और काम करा, और काफ़ी मेहनत करी. आई मीन सो these guys are the upcoming, they are the deal and they have amazing music. You guys should be looking forward and they are the new kids in the block. Watch out. मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि ये आप जो है यू हैव बीन फ्रेंड्स टू मी विथ मी एंड वी हैव इंटरेक्टेड इन मैनी मीडिया सेशंस. ये आज इनका दिन है और आज एक्चुअली एक मुझे लगता है इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टेप है, बेबी स्टेप है, क्योंकि वेस्ट में हैंस जिमर, पफ डैडी, डॉक्टर ड्रे, एवरीबडी हैज़ देयर ओन
लेबल, और उधर से बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियन जो अभी बहुत, हैंस जिमर का तो ऑलरेडी 3-4 लोग जो बहुत नाम कर चुके हैं, ऐसा जो रिमोट कंट्रोल है हैंस जिमर का। तो इधर जैसे आप ऐसे कंपेयर कीजिए जैसे आदित्य चोपड़ा जब यश राज फिल्म स्टार्ट किया, और मनीष शर्मा, कबीर खान, अली जफ़र सबको लॉन्च किया, या धर्मा में जब सबको लॉन्च किया, ऐसा एक बेबी स्टेप टुवर्ड्स अ रेवोल्यूशन इन हिंदी फिल्म म्यूज़िक ये नहीं हुआ है पहले, ये आज so please support us and please support these boys and support everybody. There will be lot of new talents. We have so many new talents in your country and everybody just waiting to get a break, and here we are trying something. Thank you very much for being with us. A question kiya tha, sorry. Sorry, I got emotional and No. Can- Let's do it together. Let's do it. Come, Zubin, come. Go. है दर्द अगर मेरा वो क्यों से है छू रहा, फिकर उसे मेरी है क्यों नहीं, जो मेरा ये इश्क है या अश्क है, जो मेरी आँखों में है क्यों ऐसे भीगता, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। थैंक यू। Thank you, guys. I think we are done here. मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि आपको मैं डरावना क्यों लगा ट्रेलर में? इसलिए लगी कि दाढ़ी आपकी और हाँ, इसलिए डरावना लगा आपको? डरावना लगा नहीं लगा, चलो शुक्र है यार, डरा दिया तो। अच्छा सॉरी, आप क्या पूछ रहे थे? सर ने रोल के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को, क्या रोल है आपका, क्या कैरेक्टर है? मेरे कैरेक्टर का नाम है जय सिंह राठौर, और वो एक एक्सिसिस्ट है। एक ऐसा बंदा है जो कोई भी बंदा पजेस्ड हो या घोस्ट इश्यूज़, रिलेटेड इश्यूज़ हो, स्पिरिट इश्यूज़ हो, भूत को लेकर के इश्यूज़ हो, तो वो ऐसा बंदा है, एक तरीके का बाबा जो बोलते हैं हिंदी में, वो भूत को, घोस्ट को निकाल देता है। सबसे बड़ा बाबा है। तो आपने इनकाउंटर किया किसी घोस्ट? आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड, बट आई बिलीव इन घोस्ट, आई बिलीव इन स्पिरिट, and I'm hoping someday to have an encounter, honestly, because just for the sake of experience. I've heard stories, people who are close to me who have mentioned or talked about their experiences, but I have never gone through one. But whenever I do come across an experience like that, I don't think I'll be too subtle. That's what I feel right now. Now we'll see when it happens. जब शुरू में आपको ये रोल ऑफर किया गया तो आपको डोंट यू थिंक कि मतलब कि आप कॉमेडी में इतने इन्वॉल्व रहते हैं और रोमांटिक रोल्स आप करते हैं, लोगों को हंसाते रुलाते हैं, आपको ये इनसिक्योरिटी नहीं है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? ये भी रोमांटिक रोल है ना? Yeah, काफी हद तक।
यू नो व्हाट, मैं काम ऐसा करता हूँ जो मुझे पसंद आता है. अभी आप बोल रहे हो कॉमेडी, रोमांटिक, ये सारे परसेप्शंस है मेरे काम के ज़रिए ही हुए हैं. मैं अब आगे जाकर के होपफुली 1920 लंदन जैसी फिल्म जब आप लोग को पसंद आएगी, देन यू विल एक्सपेक्ट मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जॉनर ऑल्सो. बट द जर्नी हैज़ टू बी माइन. मुझे मज़ा आना चाहिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ, और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंसेस को भी मज़ा आए. बट मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, वो कोशिश जो मैं कर रहा हूँ. मीरा, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए. काफ़ी डरी सी लगती है. मैं पूरी मूवी में डर रही हूँ और रो रही हूँ. देयर इज नॉट इवन वन सीन वेयर आई एम स्माइलिंग और लाफिंग. आई प्ले अ वाइफ जिसका हस्बैंड पोजेस हो जाता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी इटसेल्फ. सो थ्रू आउट द मूवी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव हिम एज अ ब्यूटीफुल वाइफ. सो बहुत ही इज़ ट्राइंग टू he's trying to save me from the spirits and my husband, and I'm the one who's encountering it again and again. I'm the one in fact जो सबसे पहले उसको देखती है. तो obviously मैं पूरी मूवी में बहुत डरी हुई हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब आप एक्टिंग कर रही है डरने की, वाकई में आप डरी? कोई सेट देख के कुछ ऐसा माहौल बन गया, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? नहीं, जैसे सर ने बताया कि मैं ऑफ सेट डराता था, कुछ ऐसा प्राइम किया है आपके साथ? नो, आई एम बाय नेचर आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, और मैं भूतों पे विश्वास नहीं करती. मेरे को डराना बहुत मुश्किल है, लाइक इम्पॉसिबल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिट्स. एंड वो आई एम कॉकरोच और उन सब से तो डर सकती हूँ, बस स्पिरिट घोस्ट से नहीं डर सकती, बिकॉज आई डोंट बिलीव दैम. टिल द टाइम आई डोंट सी देम, आई डोंट बिलीव देम. तो डरने की सिर्फ एक्टिंग है, डरी तो नहीं थी. वी डोंट गेट स्केयर्ड ऑन द सेट. फिल्म में कभी ऐसा होता है कि ऐसा सीन रहता है या फिर मेकअप एंड ऑल्सो, क्या कभी ऐसा सेट पे कुछ हुआ जिससे डर लगा हो? कभी ऐसा? हाँ, जब भी विशाल को देखते थे डर लगता था. Because he's such a cute guy with dimples, he's a really good looking guy. But जब वो मेकअप करके आता तो so we really used to feel कि shit. I mean, for the first time when we saw him, we were like shit, ये विशाल है क्या? Because he used to transform, and he used to transform in a very scary way. So I think he was the scary factor in the movie. सर जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी फिल्में आ चुकी है, राज आई थी और इससे पहले जाने दुश्मन, तो इस फिल्म में क्या अलग रहेगा? फिल्म कितनी अलग रहेगी ये कहानी, अपार्ट फ्रॉम डराने के अलावा कितनी अलग कहानी है, और नए तरीके से डर कैसे लगेगा लोग? देखिए, जैसे रोमांटिक और फैमिली ड्रामास कई तरीके के और बहुत सारे आ चुके हैं, वैसे ही ये एक ऐसी जॉनर है जिसमें ऐसी बहुत सारी फिल्म आ सकती है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट आई फील इंडियन सिनेमा में हम लोग सुपरनैचुरल थ्रिलर्स या हॉरर फिल्म्स बहुत कम अभी तक अटेम्प्ट कर रहे हैं. फॉर वट एवर रीजंस, देयर आर वेरियस रीजंस पीपल बिलीव देयर आर, बट आई रियली डोंट सी व्हाई वी शुड बी मेकिंग मोर ऑफ दिस. एंड इसकी कहानी अलग है. डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी द स्केयर्स. जॉनर है तो द जॉब ऑफ द जॉनर इज टू स्केयर यू. You will get scared. At the same time, you have great production values. It's a great package all in all. It's absolutely, you have a wonderful, pretty looking actress and handsome looking actor, and you have great songs, and you have a great story too. And it has a love story, absolutely. So yeah, it's a film that we are very excited about. Yeah. शौक सर, कोई भी आपकी फिल्म या पुरानी फिल्म याद आती हो जो आपको हमेशा मतलब से देखा मुझे डरे हो, आपको याद आती हो, उसका रेफरेंस लिया हो जो आपकी हमेशा फेवरेट रही? हम आपसे ही पूछ. Oh yeah, बहुत सारी. Paul Tobey. जब हम लंदन में शूटिंग कर रहे थे, you went to see one of the horror movies there itself. हाँ, Conjuring I've seen. Yeah. Oh yeah, that was one hell of a scary movie. Conjuring. That was really scary recent times. Hindi movies Bhoot I really love. And Ajay Devgan वाली, correct. Urmila Matondkar, Ram Gopal Verma साहब की फिल्म. और I loved Raj also. वो भी बहुत खूबसूरत थी. Raj one was also very good, I feel. Yeah, that was also. Thank you guys. ये हैं कौशिक और ये हैं आकाश. हेलो हेलो. और दे आर द म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स ऑफ द सॉन्ग गुमनाम, जो पहला गाना है 1920 लंदन का. और दे आर द न्यू किड्स इन द ब्लॉक. Guys, you should watch them out. They have incredible music. I have heard some. I might be a part of some if they will allow. Definitely. We're looking forward to it. So आकाश कौशिक, जब आपको बताया गया गुमनाम है कोई इतना एक आइकॉनिक गाना है, आपको तो दोबारा रिक्रिएट करना था, तो कहीं प्रेशर नहीं था कि यार कहीं आप उस एनर्जी को मैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ था? प्रेशर तो बहुत था, प्रेशर, बट हम लोग किए उसको, काम किए, नया आइडिया लेके आए, तो सबको पसंद आया, तो ठीक था हम लोग. म्यूजिक से अलग है, लिरिक्स से अलग है, कैसे किया आपने अलग? See, when we got the brief of this song, कि do something that is like different from other horror songs. So what we got, कि can we just bring out something from the old school music and punch it with our own composition and make it new only. So spookiness was the main thing we had to kill.
spookiness रखा हमने, as well as we kept that sad melody thing, a romantic sad melody. And then when we gave that brief, when we presented that to the producer and the director, they were very supportive, and they told us कि this is super, just go ahead with this. तो was that your idea कि आपको ये गाना रिक्रिएट करना है या फिर कोई और धुन आपके जो दिमाग में चल रही है? नहीं, it was not कि ये गाना करना है या वो गाना करना है. It was always कि हॉरर फिल्म था 1920 का. हॉरर फिल्म है. If you can do that, or if you can do a completely new song, up to you. But anything would be interesting because आजकल ये ट्रेंड है बहुत. आपके दूसरे गाने के बारे में जानना चाहिए जो भी लॉन्च नहीं हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए. वो तो आ रहा है अभी. It will come. वो आपकी ओरिजिनल कंपोजिशन है? हाँ वो फुल नहीं No, it's not a recreation. सिंगर्स कौन है, कैसे कंपोजिशन क्या वो है? गाना वो the male singer is KK sir and has female is and Antara. Antara. Female is Antara. So it's a love song. It's a completely out and out love song. So you guys should also be looking forward to that because it's a very sweet melodious tune as well as it has got a raw groove to it. So you would love that. जुबिन, अगर आप बात करें आपके, क्योंकि आपकी वोकल्स हैं गाने में और जो ओरिजिनल गाना है उसके अलावा जो कुछ नया हुआ वो आपकी आवाज़ पर, आपके लिरिक्स पे हुआ है. आई मीन आपने कुछ अलग किया है उसमें, आपको कुछ नया मिला है उसमें. तो इसमें आपने अपना इनपुट कितना डाला, आपने किस तरीके से निभाया इस गाने में, और क्या कितनी डिस्कशन करते थे आप अपने म्यूजिक कंपोजर से? जब सिंगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर जाता है तो उस वक्त वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है म्यूज़िक डायरेक्टर्स पे, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को पता है कि फिल्म में वो किस तरह से आएगा, गाने का म्यूज़िक किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं और गाना उनका उन्होंने धुन बनाई है. तो उस समय आई थिंक सबसे फेवरेबल चीज़ एक सिंगर की होती है कि अपने स्टाइल को इंटैक्ट रखे, ट्राई टू फॉलो एज मच एज यू कैन अंडरस्टैंड. एंड मैंने वही करा. मुझे ये बोथ ऑफ देम आर इनक्रेडिबल सिंगर्स टू, मतलब वो लोग बहुत अच्छा गाते थे. उन्होंने मुझे गा के बताया कि ऐसे हो सकता है. एंड वी डिड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. वी डब द सॉन्ग इन, मतलब वो था ना एक सॉन्ग के बेटरमेंट की तरफ ले जाना गाने को, उसको बड़ा करना, उसको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी उस मोमेंट में. तो उसके लिए टीम वर्क ज़रूरी होती है, तो हमने उस टीम की तरह वर्क करा. एंड आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ गोना फ्लो. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. करने के लाइन द क्वेश्चन इसके, क्योंकि इतना आइकॉनिक गाना है. मैं अभी आकाश कौशिक से यही पूछ रहा था कि दोबारा रिक्रिएट किया, अपनी फ्रेश एनर्जी है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मतलब कहीं बोरियत है और कहीं बोर्डम आ रहा है. आपने इस गाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको इन पर ज़्यादा विश्वास था कहीं ना कहीं अपने खुद से ज़्यादा? नो, ये बात ही नहीं है ऐसा. ये अभी मेरा काम है तो मैं बिजी हूँ, वो अलग सा बात है. ये एक नया प्लेटफॉर्म है न्यू कमर्स के लिए. और ये जो कंपनी है जस्ट अबाउट म्यूजिक, इट्स अ रिकॉर्ड लेबल, A&R एंड इंक्यूबेशन रिकॉर्ड लेबल. तो ये दो आर्टिस्ट है ये कंपनी का पहले. तो आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको अगर क्लोजली एनालिजी करना है, कंपेयर करना है, तो आप सोचिए कि करण जौहर जो खुद एक बड़ा डायरेक्टर है, वो कंपनी फॉर्म के धर्मा कंपनी फॉर्म करके उसमें से कितना अच्छा टैलेंट सब आया. शकुन बात्रा, शशांक, आयान मुखर्जी, लाइक आप आयन जैसा टैलेंट है, इतना टैलेंट है. सो ऐसा है आदित्य चोपड़ा, मनीष शर्मा, अली जफर, कबीर खान साहब, आदित्य चोपड़ा, संजय गढ़वी सब आदित्य चोपड़ा का अम्ब्रेला से आए. तो ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जहाँ नया टैलेंट को हम डेवलप करके चांस देंगे. तो इसीलिए कौशिक और आकाश हमारा पहला टैलेंट है जो मार्केट में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. और ये आप लोगों का ब्लेसिंग चाहिए. मेरा जो काम चल रहा है तो अलग है. इसीलिए मैं करण जौहर, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा का एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये फिल्म में ये पहला हो चुका है, लेकिन म्यूजिक में पहले नहीं हुआ है. तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए. तो अगर ये खाली मैं ओवरऑल इसको सुपरवाइज किया, बट काम इन्होंने किया. तो ये गाना इनका, तो इंटरव्यू इनका ही लीजिए. तो मैं खाली मेरा प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर सकता हूँ, मेरा कंपनी के बारे में बात कर सकता हूँ. और अभी हम लोग एक कंपनी को जस्ट अबाउट म्यूजिक एक नाम में बोल रहे जैम, बट आप अभी भी ओपन है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. तो आपको अगर कोई अच्छा नाम सोचिए प्लीज़ मेरे को फेसबुक में सजेस्ट कीजिएगा. जानना चाहेंगे आपकी पहली मुलाकात, क्योंकि कंपनी लॉन्च कर रही है, फिर आपके पहले टैलेंट है, तो आप कैसे मिले, क्या बातें हुई, कब आपने इनका टैलेंट देखा, कब आपने इनकी कंपोजिशन से? नहीं, ये इनको मैं इंटरव्यू कर रहा था जब मैं कौशिक को पहले से जानता हूँ, आकाश को ऐसे ही मिल गया. और मैं इन दोनों को बोला कि अरे तुम दोनों एक जगह से हो, सो आप तुम दोनों एक साथ काम करो. तो इसीलिए
काइंड ऑफ जोड़ी आपने बनाई। जोड़ी बना दिया क्योंकि मेरे को लगा कि इन दोनों बहुत अच्छा एक साथ ट्यूनिंग है और काम कर सकता है। और उसके बाद जब गुमनाम का आइडिया है तब जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कैसे गुमनाम हो सकता है, तो मैं एक उनको ऐसे ही बोला कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये पूरा कम्प्लीटली जो कॉम्पोजिशन है सब इन लोग ने बनाए और इन लोग ने पूरा प्रोड्यूस किया है आज तो बुशारी के साथ बैठ के। सो खाली मेरा ये था कि ओवरऑल अच्छा है कि बुरा नहीं, इसको थोड़ा मिक्सिंग ठीक करो या ऐसा करो। मैं खाली ओवरऑल थोड़ा सा सुपरवाइजेशन के तरह आया। और ऐसे हम अभी बहुत सारे लोगों को भी मिल रहे हैं, ऐसे काफ़ी टैलेंटेड आपको भी किसी को मालूम है को हमारे पास भेज दीजिए। सो हमको अगर अच्छा लगे तो हम लॉन्च करेंगे। ये एक कंपनी का ये कंपनी को मैनेज कर रहे हैं कौन, और जो बहुत बड़ा मैनेजमेंट कंपनी है जो काफ़ी स्टार्स को मैनेज करता है। तो ये कंपनी आई एम हैप्पी दैट ये प्लेटफॉर्म इज इन सेफ हैंड्स ऑफ कौन। So there are nice people involved in it. It's a very positive energy, and hope with your blessing it will go long step. आप दोनों से जाना चाहेंगे क्योंकि आप एक जोड़ी है इस गाने की गुमनाम गाने की, तो कैसा रहा सफर और क्या क्या मेमोरीज रही गाने के दौरान, क्या क्या शेयर करना चाहें, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस। मैं कौशिक और आकाश को कुछ दिनों से जानती हूँ और ये लोग इंडिविजुअली काफ़ी टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स भी। पर बाद में जब दादा ने इन दोनों को साथ में जोड़ के एक टीम जैसा बनाया म्यूज़िक करने के लिए, और उन लोगों ने साथ में बैठ के अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो गाना किया, उसने आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट पहले जिनको सुनाया इन लोगों ने, उसमें से मैं भी एक हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जुबिन ने आके वो गाना जब गाया तो वो गाना किसी और ही लेवल पे पहुंच गया। एंड दिस इज आई एम नॉट सेइंग बिकॉज जुबिन इज हियर, ही इज रियली दिस द पेन इन द वॉइस एंड द melancholy एंड एवरीथिंग टुगेदर, इट मेड द सॉन्ग रियली ब्यूटीफुल। उसके बाद जब गुमनाम वाला पोर्शन आया तो मैंने 2-3 तरीके से इस गाने को गुमनाम, एक तो लता जी ने जैसे गाया है उसी तरीके से एक बार गाने की भी कोशिश की, फिर बाद में अभी जो है एग्जिस्टिंग वैसा। तो दे आर द म्यूजिक डायरेक्टर्स, दे चोज कि लेट्स कीप इट लिटिल मोर मॉडर्न एंड लिटिल मोर नॉट एग्जैक्टली लाइक टू द ओरिजिनल दैट, क्योंकि ओरिजिनल जैसे गाने से इमीडिएटली कंपैरिजन आ जाता है और लता जी के साथ किसी की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमने उसको थोड़ा डिफरेंट गाने की कोशिश किया। और एक बहुत ही खूबसूरत समा रहता था हमेशा स्टूडियो में इन लोगों के साथ। दे आर ऑल वी आर ऑल वेरी सिमिलर एज एंड इट इज़ ऑलवेज फन टू वर्क विद देम। And Zubin will also agree with me that whenever he is in the studio working with these guys, it's always fun. So मज़ा मस्ती में कभी गाना हो गया इतना, हम लोग खुद भी रात में कभी कभी लाइट ऑफ करके ये गाना प्ले करके हंसते रहते थे कि वाओ कितना डरावना गाना बन गया है। These things also we have done. So it's a beautiful memory and nice journey with them. उन्होंने अपनी जोड़ी बनाई, तो आपको नहीं लगता कि जोड़ी बनने के कुछ फायदे होते हैं लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे आप कुछ और कंपोज कर रहे हैं वो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, आप कुछ कंपोज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है? देखिए यहाँ पे तो ट्विस्ट है ना, हम लोग अलग अलग कंपोज करते ही नहीं। हम लोग जब बैठते हैं तो साथ में बैठते हैं। इवन अ सिंगल लाइन इज नॉट कंपोज बाय मी और बाय हिम, इट्स अ डुअल कॉम्बिनेशन। इफ आई स्टार्ट द लाइन ही एंड्स द लाइन एंड वी ऑलवेज एग्री टू इट। हम लोगों का म्यूजिक में ट्यूनिंग समहाउ, आई डोंट नो हाउ दादा सॉ इट, बट इट्स लाइक सुपर द ट्यूनिंग इन म्यूजिक देन एनीथिंग एल्स। सुना ने जो गाना जिसकी बात कर रहे हैं आप लोग सिखा दें, आप भी और नाइस आप भी। আমার গান গুমনাম अगर मेरा क्यों से छू रहा फिकर से मेरी है यूं नहीं जो मेरा ये इश्क है या इश्क है जो मेरी आँखों में है क्यों ऐसे भीगता। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वो
अनजान है कोई, गुमनाम है कोई,